دا مونک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے پیسے سے متعلق آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ 2018 میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی کھو دی۔ سطح پر تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن پردے کے پیچھے مارکیٹ مہینوں سے انتباہی اشارے دے رہی تھی۔ آج ہم ایک جاسوس کی طرح ان اشاروں کو جوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک بڑی تباہی بننے سے پہلے اس کی سرگوشیاں کیسی سنائی دیتی ہیں۔ یہ بہت دلچسپ زاویہ ہے، کیونکہ دیکھیں مارکیٹ کریش کوئی آسمانی آفت نہیں ہوتی جو اچانک نازل ہو جائے۔ یہ ایک بیماری کی طرح ہے جس کی علامات بہت پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ شور شرابے میں ان خاموش علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ہم انہی علامات کو پڑھنا سیکھیں گے۔ بالکل، تو آج ہمارا مشن ہے ان خاموش سگنلز کو ڈی کوڈ کرنا۔ صحیح، ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے چارٹس کی زبان۔ چارٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، پھر کمپنی کی بیلنس شیٹ میں کیا چھپا ہے۔ بالکل۔ پھر یہ جو اسمارٹ منی ہے، بڑے کھلاڑی، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی چالیں۔ اور آخر میں پوری معیشت کا موسم کیسا ہے۔ تو چلیں پہلی کڑی سے شروع کرتے ہیں، چارٹ سے۔ قیمت اور حجم، یہ ہمیں کیا کہانی سناتے ہیں؟ دیکھیں، چارٹس سرمایہ کاروں کی نفسیات کا ایکس رے ہوتے ہیں جی، اور سب سے پہلی اور واضح علامت جو اس ایکس رے میں نظر آتی ہے وہ ہے قیمت کا لوئر ہائیز بنانا۔ لوئر ہائیز، اچھا، یعنی ہر نئی اونچائی پچھلی والی سے کم ہو۔ بالکل، یوں سمجھے کہ ہر نئی کوشش میں سٹاک تھوڑا پہلے ہی تھک جاتا ہے۔ اچھا، اس کی کوئی حقیقی مثال، جیسے آپ 2017-18 کے کریش کا ذکر کر رہے تھے؟ بہترین مثال ہے، 2017 میں بینکنگ سیکٹر کے کئی سٹاکس 70 روپے سے 110 روپے تک گئے، زبردست تیزی تھی۔ جی، لیکن 2018 کے شروع میں 110 کی چوٹی بنانے کے بعد اگلی بار جب سٹاک اٹھا تو 108 پر ہی ہمت ہار گیا۔ اس کے بعد 105 پر اور پھر 102 پر۔ یہ ایسا تھا جیسے کوئی پہاڑ چڑھنے والا تھک رہا ہو اور ہر قدم کے بعد اس کی سانس پھول رہی ہو۔ صحیح۔ یہ رفتار میں کمی کا واضح اشارہ تھا کہ خریداروں کا دمخم مطلب جوش وہ ختم ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو تھکے ہوئے پہاڑ چڑھنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پھسل گیا۔ چند ہی مہینوں میں قیمت 110 سے گر کر 65 پر آ گئی۔ اوہ! جو تجربے کار تھے وہ 105 108 کی سطح پر ہی سمجھ گئے تھے کہ موسم بدل رہا ہے، اور انہوں نے یوں کہیں اپنا سامان باندھ لیا۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کبھی کبھی سٹاک تھوڑا نیچے آ کر سانس لیتا ہے اور پھر دوبارہ اوپر چلا جاتا ہے، جسے کنسولیڈیشن کہتے ہیں۔ جی، تو ایک عام سرمایہ کار ایک خطرناک لوئر ہائی اور ایک صحت مند کنسولیڈیشن میں فرق کیسے کرے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب دوسرے اشارے میں چھپا ہے، اور وہ ہے حجم یعنی والیوم۔ حجم؟ جی، اسے اس طرح سوچیں کہ حجم دراصل ریلی کا ایندھن ہے۔ اگر گاڑی کی رفتار بڑھ رہی ہو لیکن فیول گیج تیزی سے نیچے گر رہا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سفر زیادہ لمبا نہیں ہے۔ صحیح۔ 2016 میں سیمنٹ سیکٹر کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ اچھا، وہ کیسے؟ مجھے یاد ہے اس وقت سیمنٹ سیکٹر میں بہت جوش تھا۔ بالکل، قیمت 180 سے 240 روپے تک پہنچ گئی، لیکن اسی دوران روزانہ کا حجم 20 ملین شیئر سے کم ہو کر صرف 6 ملین رہ گیا۔ اوہو، اتنا زیادہ فرق؟ جی، قیمت اوپر جا رہی تھی لیکن ایندھن ختم ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس تیزی میں بڑے اداروں کی شرکت نہیں ہے، صرف چھوٹے سرمایہ کار ہی جوش میں خرید رہے ہیں۔ اچھا۔ اور جب ایندھن ختم ہوا تو گراوٹ بھی اتنی ہی تیز تھی، قیمت 240 سے سیدھا 140 پر آ گری۔ تو لوئر ہائیز کے ساتھ اگر حجم بھی کم ہو رہا ہو تو یہ تو ایک طرح سے دوہرا خطرے کا سگنل ہے۔ بالکل، یہ ڈبل وارننگ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تکنیکی اشارہ جس پر نظر رکھنی چاہیے؟ ہاں، 2 اور ہیں جو بہت اہم ہے۔ ایک ہے سپورٹ لیول کا ٹوٹنا، یہ ایک نفسیاتی حد ہوتی ہے۔ جیسے کوئی خاص قیمت کی سطح؟ جی، جیسے 2020 میں کرونا کریش کے وقت 38,000 انڈیکس کے لیے ایک مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ قلعہ ٹوٹا، خوف پھیل گیا۔ بالکل، مارکیٹ میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور انڈیکس سیدھا 27,000 پر جا گرا۔ اور دوسرا ہے ناکام بریک آؤٹ، جسے ہم اپنی زبان میں بل ٹریپ یا بیلوں کا جال کہتے ہیں۔ بل ٹریپ؟ جی، قیمت ایک رکاوٹ کو توڑتی ہے، سب کو لگتا ہے کہ اب یہ آسمان پر جائے گی، لیکن فوراً واپس نیچے آ جاتی ہے۔ 2021 میں ٹیک سٹاکس کے ساتھ یہی ہوا۔ کیا ہوا تھا؟ ایک سٹاک 90 کی رکاوٹ توڑ کر 96 تک گیا، لوگ ٹوٹ پڑے اور پھر وہیں سے قیمت 78 پر واپس آ گئی،
ये एक जाल था जिसमें छोटे सरमायाकार फंस गए। तो चार्ट तो हमें बता रहा है कि खरीदार थक रहे हैं और ईंधन भी खत्म हो रहा है, लेकिन क्या ये कहानी कंपनी के अपने खातों में भी नजर आती है? बिल्कुल आती है। क्योंकि असल कहानी तो नंबरों में छुपी होती है ना। बिल्कुल। चार्ट सिर्फ धुआं दिखाता है, आग तो कंपनी के बैलेंस शीट में लगी होती है। और मेरे तजुर्बे में यह सबसे बड़ा खामोश कातिल बढ़ता हुआ कर्ज है। मुनाफा में कमी तो सबको नजर आ जाती है, लेकिन कर्ज का बोझ बैलेंस शीट में छुपा होता है और आहिस्ता आहिस्ता कंपनी को अंदर से खोखला कर देता है। इसकी कोई मिसाल है? 2018 से 2020 के दौरान पावर कंपनियों के साथ यही हुआ। एक कंपनी का कर्ज 4 अरब से बढ़कर 18 अरब हो गया। 4 से 18 अरब? जी, जबकि मुनाफा 1.2 अरब से कम होकर सिर्फ 200 मिलियन रह गया। कर्ज पर सूद ने सारा मुनाफा निगल लिया। तो बाहर से सब ठीक लग रहा था। हाँ, बाहर से सब ठीक था, लेकिन अंदर ही अंदर कंपनी माली तौर पर कमजोर हो रही थी। नतीजा ये निकला कि स्टॉक की कीमत 45 से गिरकर 18 पर आ गई। तो बढ़ता हुआ कर्ज और गिरते हुए मार्जिन एक बहुत खतरनाक इम्तिजाज है। बहुत खतरनाक। और मुनाफे के बारे में क्या? क्या कीमत गिरने से पहले मुनाफे में भी कोई तब्दीली नजर आती है? यकीनन। इसे अर्निंग्स स्लो डाउन कहते हैं। कीमत गिरने से काफी पहले कंपनी के मुनाफे की शरह नमू, मतलब उसकी ग्रोथ रेट, वो सुस्त होना शुरू हो जाती है। अच्छा। 2022 में टेक्सटाइल सेक्टर को देखें। एक बड़ी कंपनी की मुनाफा की शरह नमू 35% से कम होकर 22%, फिर 7% और आखिर में मनफी हो गई। लेकिन स्टॉक की कीमत बहुत पहले ही गिरना शुरू हो गई थी। ये दिलचस्प है। मार्केट को पहले कैसे पता चल जाता है? क्योंकि बड़े इदारे और तज्जियाकार इन रुझानात को आवाम से बहुत पहले भांप लेते हैं। वो कैसे? वो कंपनी की सप्लाई चेन, खाम माल की कीमतों और आलमी डिमांड पर नजर रखते हैं। वो जानते हैं कि अगर कपास महंगी हो रही है और यूरोप में डिमांड कम हो रही है तो अगले 6 महीनों में मुनाफा कम होगा। सही। लिहाजा वो अपनी पोजीशंस को इसी हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक और इशारे का जिक्र करना चाहूंगी जो मैंने देखा है, वो है डिविडेंड कट। जब कोई मुस्तहकम कंपनी अपना मुनाफा कम कर दे। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प नफसियाती खेल नजर आता है। वो क्या? जब कोई कंपनी अपना डिविडेंड कम करती है तो ये उस बात का आवामी एतराफ होता है कि उसके पास कैश की कमी है। लेकिन कहानी इससे भी पहले शुरू होती है। अच्छा। अक्सर डिविडेंड कट के ऐलान से चंद महीने पहले इनसाइडर सेलिंग, यानी कंपनी के मालिकान की तरफ से हिस्सों की फरोख्त शुरू हो जाती है। तो अंदर वालों को पहले से मालूम होता है? बिल्कुल। इनसाइडर्स को मालूम होता है कि कंपनी की कैश फ्लो की पोजीशन कमजोर हो रही है, इसलिए वो चुपके से अपना माल बेच देते हैं। फिर जब डिविडेंड कट का ऐलान होता है तो आम सरमायाकार घबराकर बेचना शुरू करता है, लेकिन तब तक स्मार्ट पैसा पहले ही महफूज मुकाम पर पहुंच चुका होता है। तो ये एक तरतीब है जो बार बार दोहराई जाती है। जी, बार बार। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि स्मार्ट मनी यानी बड़े और बाखबर सरमायाकारों के रवैये पर भी नजर रखनी चाहिए। लाजमी। ये वाकई दिलचस्प हिस्सा है। आइए देखते हैं कि ये बड़े खिलाड़ी गिरावट से पहले और क्या करते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ये एक बहुत ही खामोश और सब्र आजमा खेल है। डिस्ट्रीब्यूशन? जी। एक बड़ी तेजी के बाद कीमत कई महीनों तक एक तंग रेंज में फंस जाती है। 2019 में ऑयल एंड गैस सेक्टर में यही हुआ। एक स्टॉक 120-125 की रेंज में 4 महीने तक फंसा रहा। तो आम सरमायाकार उस वक्त क्या सोच रहा होता है? अवाम उसे इस्तेकाम या कंसोलिडेशन समझती है। वो सोचते हैं कि स्टॉक आराम कर रहा है और यहां से अगली छलांग लगाएगा। लेकिन असल में? लेकिन हकीकत में ये तकसीम या डिस्ट्रीब्यूशन होती है। स्मार्ट पैसा खामोशी से निकल रहा होता है और अपना माल गैर मुत्तलाशुदा पैसों को पकड़ा रहा होता है। जैसे ही उनकी फरोख्त मुकम्मल हुई, कोई खरीदार बाकी नहीं बचा और कीमत 125 से सीधा 75 पर गिर गई। और इनसाइडर सेलिंग जिसका आपने जिक्र किया, क्या हर अंदरूनी फरोख्त खतरे की घंटी है? हो सकता है किसी डायरेक्टर को घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए? बेहतरीन सवाल है। अकेली फरोख्त कोई मायने नहीं रखती। तो फिर कैसे पता चले? जब आप देखें कि एक ही वक्त में 3-4 डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स अपने हिस्से का बड़ा हिस्सा बेच रहे हों और ये फरोख्त एक तसलसल के साथ कई हफ्तों तक जारी रहे, तो ये एक इनफरादी ज़रूरत नहीं बल्कि एक इज्तिमाई अदम एतमाद का इशारा है। सही।
शुगर मिल्स में कई बार देखा गया कि बड़े नुकसान के ऐलान से 6 माह पहले मालकान का हिस्सा 58% से कम होकर 49% रह गया। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसी से जुड़ा एक नुक्ता गैर मुल्की सरमायाकारों का भी है। उनकी फरोख्त भी एक बड़ा इशारा मानी जाती है। बिल्कुल, गैर मुल्की इदारे बहुत गहरी तहकीक के बाद सरमायाकारी करते हैं। जब वो बड़े पैमाने पर फरोख्त शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें या तो आलमी माशियत में कोई खतरा नजर आ रहा है या फिर पाकिस्तान की मकामी माशियत पर उनका एतमाद कम हो रहा है। 2018 और 2022 में जब भी एक मुख्तसर अरसे में $200 मिलियन से ज्यादा की गैर मुल्की फरोख्त हुई, मार्केट क्रैश कर गई। तो ये ऐसा है जैसे जहाज से सबसे तजुर्बाकार मुसाफिर पहले निकल रहे हो। बिल्कुल, वो सबसे पहले लाइफ बोट्स में सवार हो रहे होते हैं। तो हमने चार्ट्स देख लिए, कंपनियों की सेहत परख ली और बड़े खिलाड़ियों की चालें भी समझ ली। अब जरा जूम आउट करते हैं और पूरे जंगल को देखते हैं, यानी पूरी मार्केट और मईशत का माहौल। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाज़ औक़ात बेहतरीन कंपनी भी गलत सेक्टर या ख़राब मईशत की वजह से डूब जाती है। सही। पहला बड़ा इशारा है सेक्टर की कमज़ोरी। जब किसी एक स्टॉक के बजाय पूरा सेक्टर एक साथ गिरना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि मसला इनफरादी कंपनी का नहीं बल्कि पूरे सेक्टर की बुनियाद में है। जैसे 2023 में ऑटो सेक्टर के साथ हुआ। बिल्कुल, बुलंद शराय सूद की वजह से गाड़ियों की फरोख्त बुरी तरह मुतासिर हुई। नतीजा ये निकला कि तमाम ऑटो स्टॉक्स 20 से 35% तक गिर गए, चाहे उनकी इनफरादी बैलेंस शीट कितनी ही मजबूत क्यों ना हो। तो ये डोमिनो असर की तरह है। जी, जब पूरा सेक्टर ही दबाव में हो तो उसकी बेहतरीन कंपनी भी महफूज नहीं रहती। और फिर मईशत का अमूमी दबाव, जिसे मैक्रो प्रेशर कहते हैं, ये तो शायद सबसे बड़ा अंसर है। बिलाशुबह 2022-23 का बहरान इसकी वाज़ेह मिसाल है। रुपए की कदर में शदीद कमी, IMF प्रोग्राम में ताख़ीर और शरह सूद में बेपनाह इजाफा। ये तीनों अवामिल मिलकर एक ऐसा तूफान बन गए जिसने मार्केट को 45,000 से 28,000 की सतह पर ला पटका। तो माशी अवामिल सबसे अहम है। जी, मार्केट की सिमत मुतय्यन करने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प नफ्सियाती इशारा, मीडिया और सोशल मीडिया पर बेपनाह तेजी का शोर, जब हर तरफ से खरीद लो की आवाजें आने लगे। हाँ, ये एक क्लासिक ही तजाद है। वॉरेन बफेट का मशहूर कॉल है कि जब दूसरे लालची हों तो खौफजदा हो जाओ। हाँ, सही। मुझे याद है 2021 की तेजी के उरूज पर मेरा एक दोस्त जो कभी स्टॉक मार्केट का नाम नहीं लेता था, उसने मुझे फ़ोन करके एक टेक स्टॉक की टिप दी। उसी दिन मैंने उस सेक्टर में अपनी पोजीशंस कम करना शुरू कर दी। अच्छा। जब टैक्सी ड्राइवर और नॉन बाय भी आपको स्टॉक टिप्स देने लगे तो समझ जाएं कि पार्टी खत्म होने वाली है और अब एहतियात करने या निकलने का वक्त है। तो हमने ये तमाम इशारे, ये तमाम सुराग इकट्ठे कर लिए हैं। एक आम सरमायाकार इन सबको एक साथ कैसे इस्तेमाल करे, ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा लग रहा है। देखें, इसे आसान बनाने का तरीका ये है कि एक ज़हनी डैशबोर्ड बनाया जाए। ज़हनी डैशबोर्ड? जी, गाड़ी के डैशबोर्ड की तरह, जिस पर मुख्तलिफ वार्निंग लाइट्स होती हैं। आप अपने स्टॉक्स के लिए एक चेकलिस्ट बनाएं। अच्छा, कैसी चेकलिस्ट? मसलन, पहला सवाल, क्या स्टॉक लोअर हाइज बना रहा है? ये तकनीकी वार्निंग है। ठीक है। दूसरा, क्या हुजूम कमजोर हो रहा है? ये ईंधन की वार्निंग है। सही। तीसरा, क्या कंपनी का मुनाफा कम हो रहा है? इंजन की वार्निंग। चौथा, क्या कर्ज बढ़ रहा है? माली वार्निंग। और पांचवा, क्या इनसाइडर्स फरोख्त कर रहे हैं? ये अंदरूनी वार्निंग है। और छठा, क्या पूरा सेक्टर कमजोर है? ये माहौलियाती वार्निंग है। तो अगर इनमें से कुछ लाइट्स जल रही हों, अगर आपके डैशबोर्ड पर इनमें से 3 या इससे ज्यादा लाइट्स चल रही हों, तो इसका मतलब है कि अब एक्सेलरेटर से पांव हटाने और ब्रेक पर रखने का वक्त आ गया है। ये बहुत अमली तरीका है। तो खुलासा ये है कि सरमाया बचाना मुनाफा कमाने से ज्यादा अहम है। यही पेशावर सरमायाकारों का सुनहरी उसूल है, पहले अपना सरमाया बचाओ, फिर मुनाफा बाद में कमाओ। जबकि छोटे सरमायाकार इसके बरक्स करते हैं। जी, वो मुनाफे के पीछे भागते हैं और सरमाये के तहफ़्फ़ुज़ को भूल जाते हैं। तारीख का सबक यही है कि जो अपना सरमाया बचा लेता है, वो अगली तेजी में कमाने के लिए मैदान में मौजूद रहता है। और जो गवा देता है, वो सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए रह जाता है। बहुत खूब। तो आज की गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि PSX क्रैश कभी अचानक नहीं आते। वो चार्ट्स, नंबर्स और रवैयों के जरिए महीनों पहले अपना ऐलान करते हैं। बिल्कुल। जो इन इशारों को पहचान लेता है वही बड़े नुकसान से बचता है। और जाते जाते सामईन के लिए एक सोच,
اگلی بار جب مارکیٹ میں ہر طرف تیزی کا شور ہو اور ہر کوئی آپ کو بتا رہا ہو کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، تو کیا آپ اس شور میں بہہ جائیں گے یا ان خاموش سگنلز کو پڑھنے کی کوشش کریں گے جن پر ہم نے آج بات کی ہے؟ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ دی مارننگ پر آنے کا شکریہ۔ Like and subscribe.